پاکستان کی آزادی کے لیے برطانیہ میں ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ ہوا۔ لندن کے ساؤتھ ہال کے 2 مختلف مقامات پر ووٹ ڈالے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے 92 نیوز کے بیورو چیف غلام حسین آوان۔ بھارت کی سکھ برادری اپنے الگ ملک کے قیام کے لیے متحرک۔ خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ کرایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں سکھوں نے برطانیہ میں ہونے والے ریفرینڈم میں آزاد خالصتان کے حق میں ووٹ ڈالے۔ آزاد خالصتان ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ لندن کے ساؤتھ ہال میں ہوا۔ شہر کے 2 مختلف مقامات پر صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ووٹ ڈالے گئے۔ سکھ فار جسٹس کے زیر انتظام گردوارہ سنگھ سبھا اور گردوارہ نانک دربار میں پولنگ اسٹیشن میں ووٹنگ کا عمل شفاف انداز میں ہوا۔ پنجاب ریفرینڈم کمیشن نے آبزرور کے فرائض سر انجام دیے۔ خالصتان تحریک کے برطانیہ میں مقیم قائدین نے کہا کہ ہمارا مقصد پرامن اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق آزاد ریاست کا قیام ہے، جس کے لیے برطانیہ کے بعد یورپ، امریکہ، کینیڈا میں ریفرینڈم کا عمل یقینی بنایا جائے گا۔ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁੜਨ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਗਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਗੰਦਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਲੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਵਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅਸ, ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ पंजाब एक वक्र कंट्री होएगी। वोटिंग के लिए आए सिख मर्द और खवातीन वोटर्स का कहना था कि भारत में सिखों के साथ होने वाली ज्यादतियों, नाइंसाफियों और मुजालिम की वजह से वो आज़ाद रियासत चाहते हैं। सिख वोटर ने इस अज़म का इजहार किया कि पंजाब में सिखों के हुकूक और आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा है कि उन्हें मुल्क में शदीद महंगाई का एहसास है। कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाएं। उन्होंने अपने दौरा बरतानिया के दौरान पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में भी खुलकर गुफ्तगू की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से खुसूसी बातचीत में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम का मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में तमाम माफियाज पर हाथ डाला है। इस हवाले से मुज़ाहमत जारी है, लेकिन इमरान खान अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान अपने विजन और कोशिशों से पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम का कहना था कि TLP के मामले में मिसकम्युनिकेशन हुई है। इस सारे मामले में रियासत की साख को नुकसान पहुँचा है, लेकिन रियासत का किरदार एक माँ की तरह होता है और उसके लिए शहरियों की जानो माल की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। राजमहल कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और PTI के रहनुमा मलिक निसार अहमद के एजाज़ में बर्मिंघम में ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं और दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मलिक निसार का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत जून से पहले बल्दियाती इलेक्शन लाजमी करवाएगी। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में ऑल पार्टीज कश्मीर कमेटी के रहनुमा मौलाना अल्ताफ हुसैन की जानब से कोटली आज़ाद कश्मीर हल्का राजमहल से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और PTI के रहनुमा मलिक निसार अहमद के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मलिक निसार अहमद ने शुरका को आगाह किया कि आज़ाद कश्मीर में जल्द बल्दियाती इलेक्शन होंगे। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की का काम बल्दियाती इलेक्शन के बाद ही शुरू होगा। इस तरह इक़्तिदार निचली सतह पर जाएगा। मलिक निसार अहमद का ये भी कहना था मेरठ की पामाली का भी जल्द खात्मा होगा। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी एक अच्छे वज़ीर आज़म साबित होंगे। ओवरसीज़ कश्मीरियों की मुश्किलात को भी कम करने में हमारी हुकूमत अहम किरदार अदा करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक निसार अहमद, मौलाना अल्ताफ हुसैन और दीगर शुरका ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन जून तक हो जाएंगे। ओवरसीज़ कश्मीरी हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी खिदमात को कभी भी नहीं फरामोश किया जा सकता। ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि बल्दियाती अदारे बहाल हों और फंड्स की यूटिलाइजेशन जो निचले सतह पर जब आएगी तो इंशाल्लाह उससे मेरिट भी बहाल होगा। और नंबर 2 जो ये पावर पॉलिटिक्स का निज़ाम है ये भी कमज़ोर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि नीचे से लीडरशिप भी परवान चढ़ेगी और जो ये एक लोग इन्वेस्ट करके सियासत में आते हैं ये कल्चर भी बंद होने का चांस जो बल्दियाती इलेक्शन होने में ही ये मौजूद है। अपनी गवर्नमेंट से, कश्मीर से और पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं यहाँ आए हैं, उन्होंने मेहनत की है और अपना मकाम बनाया है और उसके बाद जो है वो उन्होंने यहाँ से हो के अपनी फैमिलीज़ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो हम कोशिश करें और हमारी अपील है उनसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी फैमिलियों को और वहाँ जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अल्लाह करे मेरा कश्मीर आज़ाद हो जाए। राह में जितनी रुकावटें हैं, अपनों की भी ज़्यादा रुकावटें हैं। क्या कहते हैं कि हम खुद ही दीवार हैं अपनी राह में, वरना हम जो बदलेंगे तो ज़माने को बदल सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए और जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम उस दर्द को महसूस करते हुए जो है ना अपनी तमाम मेहनत और कोशिश जो है ना वो बुरे कार लाएं। लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद सियासी सरगर्मियों और डिनर की बदौलत ओवरसीज कम्युनिटी के दरमियान राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे कम्युनिटी रहनुमा खूब इंजॉय करने के साथ साथ अपने मसाइल भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में तहरीके मिनहाजुल कुरान के नए ज़िम्मेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जिसमें कारकुनों के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी भरपूर शिरकत की। मिनहाज वुमेन लीग की अहदेदार भी तकरीब का हिस्सा बनी। कारकुनों ने नए ज़िम्मेदारों को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। तहरीक मिनहाजुल कुरान डंडी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर डंडी तंजीम साजी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान से वबस्ता मर्द व ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिनहाजुल कुरान स्कॉटलैंड डंडी के तमाम कायदीन व कारकुनान की इत्तफ़ाक़ राय से जामे मस्जिद बिलाल के खतीब व इमाम मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अदील कासमी को सदर, डॉक्टर मोहम्मद अकरम को नायब सदर, जबकि जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ डॉक्टर इमरान अराई को सौंपी गयी। ताहिर महमूद सेक्रेटरी फाइनेंस, चौधरी मुजाहिद इस्लाम मेंबरशिप सेक्रेटरी, शाहिद सदीक सेक्रेटरी वेलफेयर, चौधरी तलत महमूद को सेक्रेटरी तालीम की जिम्मेदारियां दी गयीं। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर खालिद महमूद, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान स्कॉटलैंड ने नए जिम्मेदारान से हल्फ लिया। डॉक्टर खालिद महमूद ने साबका तंजीम जिम्मेदारान को उनकी आला कारकर्दगी पर सराहा और नए जिम्मेदारान को इखलास और इस्तकामत की तलकीन फरमाई। तकरीब से खताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था मिनहाजुल
القرآن انٹرنیشنل اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مغربی ممالک میں اسلام کی ترویج و اشاعت کام کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک منہاج القرآن اس صدی کی اہم مذہبی تحریک ہے اور فروغ عشق رسول کے حوالے سے اس کی خدمات تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ منہاج وومن لیگ کی صدر محترمہ سبینہ اسلام نے نو منتخب تنظیم کے کارکنان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب کے اختتام پر صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور تنظیم و تحریک کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنی سروسز فراہم کرنے کا عزم کیا۔ کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ مشتاق کویس اور کمیونٹی انٹرسٹ لوٹن کے زیر اہتمام سالانہ 12ویں کمیونٹی ایوارڈز کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں برطانیہ کے معروف عالم دین قاضی عبدالعزیز چشتی کو کووڈ کے دوران بہترین کمیونٹی خدمات پر میئر ایوارڈ اور لائف اچیومنٹ ایوارڈز دیے گئے۔ کمیونٹی کی طرف سے مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی کو ایوارڈز ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ویو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ کوئس اور کمیونٹی انٹرسٹ لوٹن کے زیر اہتمام لوٹن 12ویں کمیونٹی ایوارڈز وینیو سینٹرل میں منعقد ہوئے۔ برطانیہ کے معروف عالم دین قاضی عبدالعزیز چشتی کو کووڈ کے دوران بہترین کمیونٹی خدمات پر میئر ایوارڈ اور لائف اچیومنٹ ایوارڈز دیے گئے۔ کمیونٹی کی طرف سے خوب پذیرائی کی گئی۔ تقریب میں کمیونٹی کے سینئر ممبران موجود تھے، جن میں کونسل کے اہلکار، NHS کے اہلکار، مقامی پولیس اور تعلیم کے حکام اور سینئر کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ شرکا میں سارا اون MP، راہیل ہاپکنز MP، سابق پولیس چیف کانسٹیبل جان بوچر، ڈپٹی چیف کانسٹیبل میر محمود، پولیس کمشنر فیسٹس حسین کلر جویریہ، الطاف حسین پرنسپل 6th فارم کالج، ہائی شریف بیڈ فورڈ شائر ایرک مسیح، چیف ایگزیکٹو LBC رابن پورٹر شامل تھے۔ بیڈ فورڈ شائر کاؤنٹی کی جانب سے کووڈ-19 کے دوران عوامی خدمات کے طور پر ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والی واحد شخصیت تھے۔ میئر ایوارڈ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو صرف انسانی حقوق کے کاموں کے اعتراف میں دیا جاتا ہے، یہ ایوارڈز کمیونٹی کے لیے 40 سال کی خدمات اور کووڈ-19 کی وبا کے دوران بے لوث کام کرنے کے لیے دیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی فورم کے زیر اہتمام والتھم فارسٹ میں 14 سال سے جاری مشاعرے کی روایت ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی۔ کورونا کی وجہ سے گزشتہ سال یہ سالانہ مشاعرہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس بار مشاعرے میں کئی شخصیات دکھائی نہ دیں، کوئی دنیا سے کوچ کر گیا تو کوئی کورونا کی وجہ سے صاحب فراش رہا۔ نوجوان شعراء نے اس بار مشاعرے کو رونق بخشی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ۔ آجو یارو کٹھیاں بہ کے سن لو میری کہانی، جو بیتی ہے میرے نال نہ کریو نادانی، پتہ نہیں مینوں کیڑی گل تو شور مچاوندا ہے چاچا، رولے رپے دے وچ یارو میرا پیار گواچا، ہن نہ مندی ہے چاچی میری نہ ہی مندا چاچا، یارو رولے رپے دے وچ یارو میرا پیار گواچا۔ والتھم فارسٹ میں سیاسی، سماجی اور ادبی سرگرمیاں بحال۔ کورونا کی وجہ سے پچھلے سال ملتوی ہونے والا مشاعرہ بھی سج گیا۔ والتھم فارسٹ میں مشاعرے کی یہ خوبصورت روایت گزشتہ 14 سال سے جاری ہے۔ پاکستانی کمیونٹی فورم کے زیر اہتمام یہ مشاعرہ والتھم فارسٹ کے علاقہ لی برج روڈ لائبریری میں منعقد کیا گیا، جس کے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیکرٹری جنرل امجد مرزا اور صدر فورم ڈاکٹر رشید اختر نے خصوصی کردار ادا کیا۔ لمحوں کو یادوں سے سجائے۔ اس موقع پر سیدہ کوثر، عبد الرزاق، راجہ الیاس، محمد جہانگیر، چودھری امجد، ارشاد محمد خان، نجمہ شاہین شریک ہوئے اور اپنا اپنا کلام پیش کر کے شرکاء کے دل موہ لیے۔ میری جان تجھ کو ہم آنکھوں میں بسائے جاتے ہیں۔ شرکاء نے کہا کہ کورونا کے بعد دوبارہ اکٹھے ہوئے، لیکن بہت سے دوست لاک ڈاؤن میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تاہم مشاعرہ جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ادبی روایات منتقل کی جا سکیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ مشاعرے کا مقصد ثقافت اور روایات کو زندہ رکھنا اور نوجوانوں کو منتقل کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد اتنی زیادہ مشکلات سب نے برداشت کرنے کے بعد والتھم فارسٹ پاکستانی کمیونٹی نے ایک بہت شاندار مشاعرے کا انتظام کیا۔ یہاں پر بہت اعلیٰ شاعر ماشاءاللہ حضرات آئے، سب نے عمدہ کلام پڑھا۔ امجد مرزا امجد صاحب پروگرام کرواتے ہیں والتھم فارسٹ پاکستانی کمیونٹی فورم کے تحت، اور یہ عرصہ دراز سے
अदब और अपनी कम्युनिटी की खिदमत में कोशां हैं। लगभग 14 वर्षों से ये हमारा सिलसिला जो है ये जारी है और हम हर महीने में ये प्रोग्राम करते हैं। इस दौरान बहुत सारे हमारे जो साथी हैं हमसे जुदा भी हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें गिरी की रहमत करे, लेकिन बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी इसमें इस काफ़िले में शामिल हो गए हैं और ये काफ़िला जो है ये दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। इस मुल्क में जहाँ की बुनियादी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, वहाँ पे उर्दू बोलने वाले, उर्दू को समझने वाले या उर्दू की प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये वाल्थम फारिस पाकिस्तानी कम्युनिटी फोरम का बहुत बड़ा कारनामा है कि वो उर्दू अदब खुसूसन शायरी और किताबों के लिखने और इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं और यहाँ लोगों को इकट्ठा करके ये काम करते हैं। हाल में 5-6 किताबों की रस्म इजरा भी करते हैं और पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान डे मनाते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है, मिलादुन नबी के मौके पर नातिया प्रोग्राम होता है जैसे पिछले इतवार हुआ था। तो इस तरह एक अदब की तरक्की और तरवीज के लिए हम कोशां हैं। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे और लोगों में भी शौक है माशाल्लाह। मुशायरे के इख्तितामी मरहले में उन शोरा के लिए दुआ की गई जो 1.5 साल से ज़ायद अरसा के लॉकडाउन में वफात पा चुके हैं, जिनमें साबिक मेयर फारूक कुरैशी, डॉक्टर शौकत नवाज, आदिल फारूकी, आगा शमशदीन, जाहद असलम मरहूम शामिल हैं। मुशायरे की बरसों पुरानी रवायत बहाल होने पर शुरका ने बेहद खुशी का इजहार किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मारूफ कॉलम निगार और लंदन के समाजी रहनुमा तनवीर ज़मान खां की 2 कुतब रोज़े आशनाई और हल्काए जंजीर में ज़ुबां की तकरीब रूनुमाई लंदन के एक मकामी होटल में हुई। इस इल्मी और अदबी तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अमीन मुग़ल थे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK ग़ुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। एक शाम तनवीर ज़मान खान के नाम मनाने के हवाले से मुनक्कद इस तकरीब रूनुमाई का एहतमाम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी ने किया। थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के चेयरमैन मुश्ताक लाशारी CBA ने मेहमानों की आमद पर उनका खैर मकदम किया और मुनसिफ की सहाफ़ती खिदमात और सियासी कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अमीन मुग़ल ने पाकिस्तान में 70 की दहाई में की जाने वाली सियासी जद्दोजहद और मार्शल लॉ की सोबतों का तस्करा करने के बाद उन लोगों का जिक्र भी किया जिन्हें अपना मुल्क छोड़ने और मुहाजिर बनने पर मजबूर कर दिया गया। 14 साल की उम्र में आपने 70 के इंतखाबात को दिल के बहुत करीब से देखा। इसके बाद 77 के इंतखाबात का भी बगौर जायजा लिया। ज़या के दौरे इब्तला में 4 साल के लगभग जेल की सोबतें अपनी हड्डियों पर बर्दाश्त की। रहाई के बाद भी झूठे सियासी मुकदमात बनते रहे, हत्ता कि आपको बरतानिया आना पड़ा। इस तकरीब में उमरा लगियां पब्बा भर के गाने के तख्लीकार मजहर तरमजी ने तनवीर ज़मान खान के हवाले से जामे और मुफस्सल मजमून पढ़ा। नौजवान कलमकार और सहाफ़ती इश्तियाक घुमन का कहना था कि ऐसी किताबें सोचों का धारा बदलने की ताकत रखती हैं और माशरे में मस्बत तब्दीली की ज़ामिन हैं। ह्यूमन राइट्स की रहनुमा सैयदा कौसर मुनव्वर और नावल निगार तलत गुल ने भी मुसन्निफ को उनकी दोनों कुतुब की अशात पर मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन हारी, नामवर वकील शाहिद नदीम सिंधु, शेख जावेद रहमान, कारोबारी शख्सियत जुबैर अहमद, राना उस्मान, शहजाद यूसुफ और शकील हस्पानवी के अलावा मौज़ज़ीन कम्युनिटी की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। ग़ुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़, लंदन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 90। समिट में तरक्की पजीर और मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक की माली इमदाद करने का अहद। बरतानिया ने 290 मिलियन पाउंड की रकम गरीब ममालिक की मदद के लिए मुख्तस कर दी। बरतानवी फॉरेन कॉमन वेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस का कहना है कि बरतानिया माहौलियाती तब्दीलियों के सद्देबाब के लिए इंतहाई संजीदा है। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ UK ग़ुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड में जारी माहौलियाती तब्दीलियों और तबाहकारियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी समिट में मुश्तरका तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि दुनिया भर के मुआशी खुशहाल ममालिक मिलकर गरीब ममालिक की माली मदद करें ताकि माहौलियाती तब्दीलियों के सद्देबाब के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर बरतानवी फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की जानिब से तरक्की पजीर और मुआशी बदहाल ममालिक के लिए 290 मिलियन पाउंड का इमदादी पैकेज
पैकेज मुख्तस करने का ऐलान किया गया, जिसमें बताया गया है कि इस रकम का ज्यादातर हिस्सा माहौलियाती तब्दीलियों के सदेबाप के मंसूबों पर लगाया जाएगा और बरतानिया ऐसे मंसूबों में इन्वेस्टमेंट का भी ख्वाहिशमंद है, जिसमें फिजा में कार्बन के तदारुक जैसे मंसूबों को मुतारिफ करवाया जाएगा। समिट में दीगर मुआशी खुशहाल ममालिक ने तरक्की पजीर और मुआशी बदहाली के शिकार ममालिक की जानिब से $100 मिलियन सालाना इमदाद के मुतालबे पर भी तफसील से गुफ्तगू की और आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली में कमी और कार्बन के इस्तेमाल में वाज़े कमी जैसे मंसूबा जात को बैनुल-अक़वामी पुष्टपनाही की यकीन दहानी करवाई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। ब्रैडफोर्ड में सुन्नी जमीयत अवाम बरतानिया के ज़ेर एहतमाम फातमिया कॉलेज ब्रैडफोर्ड में अजीम उश्तान जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। हज्जतुल इस्लाम पीर मोहम्मद इरफान हुसैन शाह मुशदी मौसूवी की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से सादात कराम, उलमाए रबानीन और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुन्नी जमीयत अवाम बरतानिया के ज़ेर इत्माम फातिमा कॉलेज में अजीमुल शान जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत हुज्जतुल इस्लाम पीर मोहम्मद इरफान हुसैन शाह मशहदी ने की। बरतानिया भर से सादात कराम, उलमा और आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पीर इरफान हुसैन शाह मशहदी ने खिताब किया। उनका कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आई। हमें भी सैयदुल अंबिया की ज़िंदगी पर अमल करना चाहिए। सलाम की सीरत तय्यबा और अहले बैत अतहार और सहाबा पाक की सीरतों का नमूना पेश करें। इसमें रहमत है, सुकून है और इत्मीनान की दौलत जिसको भी चाहिए वो इन पाकीज़ा सीरतों को अपना कर ही वो अपनी ज़िंदगी को पुरअमन कर सकता है। उनका मजीद कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनियावी और आखिरी कामयाबियों के असूल की कलीद है। आज भी तरक्की और कामरानी का राज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। पीर सैयद सुल्तान हुसैन शाह मशहदी का कहना था कि महफिल मिलाद के एहतमाम से हजूर से मोहब्बत और इश्क का ताल्लुक पैदा होता है, जिससे मुनाफकत ख़त्म हो जाती है। ऐसी महफिल में नौजवानों को आपकी मोहब्बत की तालीमात दी जाएं। Prophet ﷺ is the best of creation and he is the best role model for us, for Muslims and for the whole of humankind. Whoever wants to follow, they want to. The Prophet ﷺ is the best role model in all walks of life, in all facets of life, and his characteristics. He was the best of creation and he was best in all of facets of human life. अल्लामा सैयद हसन महमूद शाह का कहना था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी की सबसे बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल जुल्म और सतम की अंधेरियां चल रही थीं, अमन और सुकून का नाम न था। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, जिससे जुल्म और सितम के तमाम बादल झट गए और हर तरफ उजाला छा गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो हमारी शफाअत की वजह से जन्नत में दाखिल होगा। ये नहीं फरमाया कि मेरी शफाअत की वजह से, हुजूर ने फरमाया बि शफाअतिना वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफउ अबदन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़िना। अल्लामा नबील अफजल कादरी का कहना था कि खातिमुल अंबिया हकूक के सबसे अजीम और हकीकी अलम बरदार हैं। क़यामत तक आप मोहसिन इंसानियत रहेंगे। फिर हुजूर के उस काफिले में शामिल होकर मदीने में दाखिल होते हैं और मदीने में दाखिल होने से पहले हजरत बुरैदा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मदीने में दाखिल होने से पहले आपके आगे झंडा होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए?
अलामा मुफ्ती बशीर तैर का कहना था कि मेरे मुस्तफ़ा का वजूद रहमत ही बड़ी नेमत है। इस मौके पर पीर सैयद फ़रूक हुसैन शाह, अलामा शफीक, अलामा हमजा हसन कादरी, अलामा साजिद शामी, सैयद अब्बास शाह, काउंसलर जवेद इकबाल और दीगर उलमा ने खिताब किया। जो सरकार के मिलाद का जुलूस जो है वो निकाल कर जा रहे थे, उन पर पथराव करके इस बात को वाज़ेह कर दिया कि हक हक है और बातिल बातिल है। उनका कहना था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। Our message of today's conference has been to the youth to inform them that our Messenger sallallahu alaihi wasallam, he is the torchbearer of civilization. By him coming to this world, he taught humanity the rights of women, the rights of children, the rights of animals, the rights of all human beings. He gave this universal message of civility and of human rights, and upholding that today is our source of success in this world and the hereafter. कॉन्फ्रेंस में पीर अल्ताफ हुसैन शाह काज़मी, सैयद फैज़ रसूल, अदनान अली हुसैनी, इब्रार अहमद हश, मौलाना मोहम्मद इरफान, वसीम चौधरी, हाफिज रज़ाक, नईम इकबाल मून, कारी ईसा खान नुशाही, अलामा कमाल हैदर, मोहसन महबूब शाह, काउंसलर मोहसन ऑफ कैथले और दीगर नात खां हजरात ने खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत पेश किया। और आखिर में पीर इरफान शाह ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए खसूसी दुआ की। इटली में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जिसमें सदारती अवार्ड याफ्ता कारी सैयद सदाकत हुसैन और अलामा सैयद हसनात अहमद बुखारी ने तिलावत कलाम पाक और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके महफिल में वजद तारी कर दिया। चौधरी अमजद हुसैन रौलिया के घर पर मुनक्किदा महफिल में बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। रोती है फूट फूट कर आंखें, रोती है फूट फूट कर आंखें। महफिल में सदारती अवार्ड याफ्ता कादरी सदाकत हुसैन ने किरत-उन-नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीब का आगाज किया। बेल्जियम से मारूफ मजहबी स्कॉलर हसनात अहमद बुखारी ने सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम में वालिदैन के मुकाम व हकूक पर खुसूसी बयान किया। उस बात को भी खुशी मनानी चाहिए कि जिसको हजूर की आमद से पहले माजूरी में घर से निकाल दिया जाता था, मुस्तफा आए हैं, हजूर ने फरमाया जिसका बाप खुश है उसका खुदा खुश है। बोलो सुभान अल्लाह। किसी फातिह को भी हजूर की आमद की खुशी मनानी चाहिए। उसने देखना हो तो फातिह मक्का का हुस्न किरदार। कारी सैयद सदाकत अली ने कहा कि वालिदैन की वफात के बाद उनके एसाले सवाब के लिए सदका व खैरात करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर ऐसी महफिल सजाना भी खिदमत से कम नहीं है। मुबल्लिग़ दीन सैयद हसनात अहमद बुखारी का कहना था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न सबको मनाना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना के इस कायनात में मबूस फरमाया। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी बशीर अहमद का कहना था कि आज की महफिल मिलाद में इटली भर से लोगों ने शिरकत करके साबित कर दिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। पाक फेडरेशन इटली के जनरल सेक्रेटरी आसिफ रजा का कहना था कि महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सबक लेना चाहिए और जरूर मनाना चाहिए। पाक फेडरेशन इटली के साबिक चेयरमैन चौधरी अमजद हुसैन रोलिया ने शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया। मेरी वालदा साहबा दा खत्म सी सालाना ते नाले ईद मिलादुल नबी दा ते मैं शुक्रिया अदा करना जनाब कारी सदाकत साहब दा अपना शाह साहब दा जनाब वैली नूं तशरीफ लै के आए ते सारे दोस्तों का बड़े दूरों जनाब जेह्ड़े दोस्त तशरीफ
लै गया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन्होंने। आज हम मौजूद हैं अपने भाई अमजद रोलिया साहब के घर में, और यहाँ पे इनकी वालदा के साले स्वाब के सिलसिले में और मिलाद शरीफ के सिलसिले में एक प्रोग्राम हुआ है। हम इनके लिए दुआ गो हैं, इनकी वालदा मायदा के लिए, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। आज हम सब लोग जो यहाँ पे जमा हैं, पूरे इटली के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं जबकि अमजद रोलिया साहब की वालदा माजदा का ख़त्म सालाना बरसी के मौका पर, और साथ से बढ़ के जो निस्बत है वो ईद मिलादुन्नबी के हवाले से है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महफिल के नतीजे में और ये जो हमारा सबका इकट्ठा होना है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महफिल में PKI के सरपरस्त चौधरी शहजाद शाही, तहरीक कश्मीर इटली के सदर महमूद शरीफ, कमर रियाज, फैसल शाही समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में चौधरी अमजद हुसैन रोलिया की वालदा के इसाले सवाब और पाकिस्तान की सलामती व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। लाहौर प्रेस क्लब में सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद हुआ, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता क़ुर्रा और नात ख़्वां हज़रात ने कलाम पाक को मखसूस आवाज़ और अंदाज में पढ़कर हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान की बड़ी तादाद रूह परवर महफिल मिलाद में शरीक हुई। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब में सालाना महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंटरनेशनल हुस्न क़िरात का एहतमाम किया गया। महफिल में फजीलतुश्शैख कारी रिजा अयूब ऑफ तंजानिया और कारी अब्दुस्सत्तार ऑफ मिस्र ने खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की। सदारती अवार्ड याफ्ता हाफिज मरगूब हमदानी, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, अब्दुल शुकूर शराजी, हाफिज मोहम्मद शमसुल हक व दीगर ने बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत के नजराने पेश किए। बाबरकत प्रोग्राम में मेहमान गिरामी दरगाह मुक़द्दस फैजिया हुसैनिया फैजाबाद शरीफ के सज्जादा नशीं पीर सैयद रजा हुसैन शाह कंधारी, लाहौर प्रेस क्लब के नायब सदर सलमान कुरैशी, मेंबरान गवर्निंग बॉडी नफीस कादरी, फौजिया गनी और आई सर्जन डॉक्टर जावेद मलिक समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नकाबत के फ़राइज़ सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 तहरीक के बानी रुकन अहमद साबर चुगताई ने अंजाम दिए। महफिल का एहतमाम साबक मेंबर गवर्निंग बॉडी मोहम्मद अहमद रजा ने किया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ OIC अफ्रीका रीजन के डिप्टी सेक्रेटरी जाहद अफजल का खुसूसी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। महफिल पाक में कुरानदाजी के जरिए फौजिया गनी, कमरुज़्ज़मान भट्टी, मलक सज्जाद, हबीब चौहान और नफीस कादरी को शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी की तफसीर नूरुल इरफान दी गई, जबकि नवीद सद्दीक, मोहम्मद अशरफ, तारिक जावेद, मोहम्मद कासिम, अहमद साबर चुगताई और मोहम्मद उस्मान में घड़ियां तकसीम की गयी, जबकि तनवीर अहमद के नाम मोटरसाइकिल का कुर्रा निकला। तकरीब के अख्ताम पर हाफिज अल्लामा सैयद अहमद रजा शाह कंधारी ने दुआ में मुल्क व मिल्लत की तरक्की और सहाफ़ियों के लिए खुसूसी दुआ की, जिसके बाद लंगर भी तकसीम किया गया। नेदरलैंड्स में पाकिस्तान के सफ़ीर के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं एम्स्टरडैम से डॉक्टर मोहम्मद कामरान।
पाकिस्तान बिजनेस फोरम की तरफ से नीदरलैंड में पाकिस्तान के नए तैनात होने वाले सफीर सलजोग मुतनसन तारड़ के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान सलजोग मुस्तनसन तारड़ का कहना था कि सफारत खाना पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के सफारती और तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। नीदरलैंड्स में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो हर किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर सफारत खाने को फॉलो करें और खुली कचहरियों और सेमिनार्स का हिस्सा बने। सफीर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ साथ डच शहरियों को भी अफगानिस्तान से निकालने में मदद की, जिसके लिए डच हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार है और मुसलसल राब्ते में भी है। ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, तो ये खुली कचहरियां जो हैं वो दैट विल बी हेल्पफुल। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर अनवर साकिब ने सफीर पाकिस्तान और दीगर मेहमानों का खैर मकदम किया और बिजनेस फोरम के क़याम के एजाज़ व मकासद, तारीख और अब तक की कारकर्दगी के बारे में बताया। उनका मजीद कहना था कि नीदरलैंड्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान खेलों के जरिए डिप्लोमेसी करना और बैरून मुल्क पाकिस्तान के तासुर को बेहतर बनाना शामिल है। तकरीब से पाकिस्तानी लेडीज एसोसिएशन की जानिब से शहजादी शमसी ने भी खिताब किया और अपनी तंजीम की सरगर्मियों से हाजरीन को आगाह किया। इस किस्म की तकरीब जहाँ दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को मिल बैठने का मौका फराहम कर रही हैं, वहीं कम्युनिटी के मसाइल सफारती अमले तक पहुँचाने का जरिया भी बनती हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, नीदरलैंड्स, 92 न्यूज़। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में डीसी पब्लिक स्कूल्स के ज़ेर-ए-तमाम खानों का आलमी दिन मनाया गया। रिवायती पाकिस्तानी डिश आलू चना दोपहर के खाने में पेश की गई। मज़ीद जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में डीसी पब्लिक स्कूल्स में पकवान का आलमी दिन मनाया गया। डीसी पब्लिक स्कूल ग्लोबल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा, तलबा और अमले को पकवान के आलमी दिन की मुबारकबाद दी गई। डीसी पब्लिक स्कूल्स में पकवान डे के मौके पर सफीर पाकिस्तान का पैगाम सुनाया गया। I am delighted to learn that on November the DC public schools are celebrating Pakistan Food Day as part of their International Food Day celebrations. Pakistan is geographically located at the confluence of South, Central and Western Asia. We are also the proud inheritors of the great Indus Valley civilization, Gandhara civilization, as well as Mehergarh civilization that capture the evolution of human civilization over a period of almost 8,000 years. अपने पैगाम में सफीर पाकिस्तान ने डीसी पब्लिक स्कूल के तलबा और असातिज़ा को पकवान डे पर मुबारकबाद दी। I'm looking forward to celebrating International Food Days with public schools in Washington, D.C. Please join me as we celebrate Pakistani Food Day, and we'll be introducing potato chickpea curry, which is popularly known as aloo chana salad in Pakistan. जबकि दोपहर के खाने में पाकिस्तानी खाना पेश किया गया। उनका मजीद कहना था पाकिस्तान सिंधी, गंधारा और मेहरगढ़ तहजीबों का वारिस है। पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में मशहूर हैं, जो कि तुर्किश, फारसी, वस्ती एशिया और बरसगीर के रिवायती खानों पर मुश्तमिल हैं। In the depth and breadth of our cuisine, where we combine the Turkish, the Persian, the Central Asian and the Indian tradition of cuisines, and it's a great mix of the use of meat, exotic spices, cooked in so many different ways, and then all of that is reflected in the various regions of Pakistan. पाकिस्तानी खाने जिनमें गोश्त, दालें, सब्जियां और तमाम किस्म के हलवाजात ज़ायके से भरपूर हैं। आज के दिन पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से रिवायती पाकिस्तानी डिश आलू चना का इंतखाब किया गया है, जो कि तमाम डीसी पब्लिक स्कूल्स में खाने के तौर पर पेश की गई। We have picked up aloo chana, and if translated into English, it would mean potato chickpeas curry.
and it's a good mix and balance of carbs and proteins. And is best served with naan, which is the traditional. اس موقع پر تمام سکولز میں پاکستانی کھانوں سے متعلق ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی جس میں پاکستانی کھانوں کو متعارف کرایا گیا تھا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، امریکہ۔ ترکی کے شہر ازمیر میں پاکستان بولی وارڈ کا افتتاح میئر ٹنگ سویر نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں سفیر پاکستان سائرس سجاد قاضی، ازمیر میں پاکستان کے اعزازی کونسل جنرل قاہت یاسر احران، چیمبر آف کامرس اسمبلی کے صدر سلما پرویزار اور ازمیر چیمبر آف کامرس کے بورڈ کے صدر محمود اوزگنر نے شرکت کی۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان بولی وارڈ 1.5 کلومیٹر لمبی گلی ہے جو ازمیر کے کاروباری اور مالیاتی ضلع کے مرکز میں واقع ہے۔ سفیر سائرس سجاد قاضی نے ازمیر میں پاکستان پویلین کا دورہ بھی کیا اور اسے ازمیر ٹورزم آفس اور ایک نمائشی مرکز کے طور پر بحال کیا گیا ہے۔ سفیر پاکستان نے ازمیر کے میئر ٹنگ سویر سے ملاقات میں ازمیر میونسپلٹی کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں معززین نے عوامی سفارتکاری کے شعبے میں اضافی مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ چین میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی سفیر معین الحق، کونسل جنرل شنگھائی حسین حیدر سمیت پاکستانی کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔ چین کے صوبہ زیچیانگ کے شہر ایوو میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا اہتمام پاکستان بزنس کمیونٹی ایوو کے صدر اشرف حسین خان اور معروف کاروباری شخصیت میاں ہارون بشیر نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق کا کہنا تھا کہ پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان میں تیز رفتار صنعت کاری حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے تحت ڈیجیٹل کوریڈورز قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستانی ینگ بزنس مین میاں ہارون بشیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کاروباری برادری کو چین کے تعاون سے پاکستان میں انڈسٹری کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے تاکہ پاکستان میں روزگار کے مواقع مہیا کیے جا سکیں۔ کونسل جنرل شنگھائی اور پاکستان بزنس کمیونٹی ایوو کے صدر اشرف حسین خان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کی دوستی مثالی ہے۔ پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس موقع پر سفیر پاکستان معین الحق نے مختلف پاکستانی کاروباری شخصیات میں یادگاری شیلڈز تقسیم کی۔ متحدہ عرب امارات میں کرکٹ کا بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ریاست اجمان میں پاکستانی سٹارز 11 اور کراؤن لائنز 11 کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا گیا جس میں پاکستانی شعبے ستاروں نے خوب چھکے چوکے لگائے۔ میچ سے لطف اندوز ہونے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ عرب امارات میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے سحر میں پوری دنیا مبتلا ہے۔ پاکستانی شوبز شخصیات بھی ان دنوں امارات میں ورلڈ کپ کا مزہ لے رہی ہیں اور شاہینوں کی کامیابی کا جشن منا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ریاست اجمان میں AZ انٹرٹینمنٹ کی جانب سے کرکٹ میلہ سجایا گیا۔ پاکستانی سٹارز 11 اور کراؤن لائنز 11 کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ پاکستانی اداکاروں کا گراؤنڈ پہنچنے پر ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ پاکستانی سٹارز 11 کی قیادت اداکار سعود نے کی جبکہ فیصل قریشی، ریمبو، نعمان حبیب، جنید خان سمیت دیگر نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ سنسنی خیز میچ میں پاکستانی سٹارز 11 نے جیت اپنے نام کی۔ مہمان خصوصی کی جانب سے اداکار سعود کو ٹرافی دی گئی۔ دیگر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ AZ قاسمی اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری سمیت معروف عرب شخصیات نے میچ میں خصوصی طور پر شرکت کی اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ پاکستانی ستاروں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ بہت پر امید ہیں پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، اجمان، متحدہ عرب امارات۔ مزید خبریں انگلش کرکٹ بورڈ اور PCB کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ انگلینڈ نے آئندہ سال دورہ پاکستان میں 2 اضافی T20 میچ کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ لاہور سے احتشام الحق کی رپورٹ دیکھیے۔
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन एक रोजा दौरे पर नायब चेयरमैन मार्टिन डार्लो के साथ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से 3 घंटे तक मुलाकात की और दो तरफा सीरीज समेत ताल्लुकात में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान इंग्लैंड के वफ्द ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में पैदा होने वाली गलत फहमियाँ दूर करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में 2 इजाफी T20 खेलने पर रजामंद हो गए। अगले साल इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप से कबल 7 T20 मैच खेलने आएगी, जबकि वर्ल्ड कप के बाद 3 टेस्ट मैच खेलने दोबारा पाकिस्तान आएगी। PCB चेयरमैन रमीज राजा ने इंग्लैंड वफ्द के पाकिस्तान आने को खुश आइन करार दिया और कहा कि 2 इजाफी T20 मैचेस खेलना शायकीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन खबर है। ECB को आइडिया हो गया कि शायद उन्होंने कहीं ना कहीं ज्यादती कर दी उस पुल आउट से, और एक नी जर्क रिएक्शन था। बड़ा इम्पोर्टेंट था ये टूर और ये ट्रिप इनके लिए लेना, मगर इनका बड़ापन है। मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ आके और इस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना और बताना कि वाकई हमसे ज़्यादती हुई है। फिर उसके बाद कि 2 एक्स्ट्रा वनडेज़ हमें मिलेंगे, वो भी हमारे फैंस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरा फ़लसफ़ा है वो यही है कि पाकिस्तान में हमारा एक होम सीज़न होना चाहिए। इस दौरे से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।